اور اللہ تعالی ہم نے حلال جانور کھانے کا حکم دیا، بکرا، گائے، اونٹ اور چھیلا، مرغا، مرغی، ان جانوروں میں اللہ غیرت رکھے۔ یہ جانور اپنے فیمیل کو دوسرا جانور ٹچ کرا تو بکرا ہڈی کھیل کو سے جان سے مار ڈالے گا، اپنی بکری کو دوسرے بکرے کے ساتھ ٹچ کرنے نہیں دے گی۔ اپنا مرغا مرغی پالتے رہتی گلی میں، تمہیں مرغا مرغی جو پال رہی، اس کی مرغی کو دوسرا مرغا ٹھوک مارنے آیا، پارکوں سے ہٹا ڈالتا، اپنی مرغی کو چھینے نہیں دیتا۔ وہ کھانے والے میں بھی غیرت اللہ ویسا رکھا۔ عیسائی لوگ خنزیر کھاتے ہیں، خنزیر کے اندر غیرت نہیں، خنزیر کھانے والے میں بھی غیرت نہیں۔ اسی لیے حلال جانور کھائے تو غیرت باقی رہتی، حلال کھانا چھوڑے اللہ غیرت کرنے کا مرنے مروا اندر سے غیرت مر جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرَوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود نازل ہو انبیاء علیہ السلام پر، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج 24 اپریل بروز جمعہ 2026 یہ مگنور شہر کی توحید مسجد میں جمعہ کا خطبہ غیرت کا فقدان اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ غیرت کہتے ہیں انسان کے اندر کی حمیت، انسان کے اندر کا ایک جذبہ جو اپنے جسم اور اپنے گھر والوں کی عزت کی دفاع میں وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس جنسی حمیت کو غیرت کہتے ہیں۔ اور یہ غیرت ایمان کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مومن باغیور ہوتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ اللہ جنت صرف غیرت مندوں کے لیے بنایا ہے، بے غیرت بے حیاؤں کے لیے جنت نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو تو جو من میں آئے کر لے، کیونکہ بے حیاؤں کے لیے اللہ جہنم کا اڈا تیار کر رکھا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 120 نمبر آیت پڑھی۔ اللہ کہتا ہے اپنے ظاہر اور باطن قسم کے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ گناہ کمانے کے پیچھے لگ چکے ہیں، ان قریب ان کے کیے اعمال کا ہم ضرور بدلا دیں گے۔ اس آیت کے تحت آج میں آپ کے سامنے انسان کے اندر غیرت کیسی ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ دنیا اب جو سچویشن چل رہا ہے دنیا کا، وہ قرب قیامت کا ہے۔ قیامت قریب آنے کا زمانہ ہے۔ نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا ہے، اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر بتائے۔ نبی کے گزرے ہوئے 1450 سال ہو گئے، ابھی قرب قیامت کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آئے دن نیو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، عورتوں کی کثرت اور عیاشی اور فحاشی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عریانیت عام ہے۔ اگر ہم دنیا کی رپورٹ دیکھیں، امریکہ میں اس بات کا، وہاں کے قوانین میں اس بات کی کوئی حرج نہیں کہ ایک لیڈی ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مکمل اپنے کپڑے نکال کر براہنی ننگی ہو کر وہ پڑھا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں کوئی قانونی کارروائی اس پر نہیں ہوگی، وہ اس کو پڑھانے کے سیکشن میں وہ اپنی باڈی کو عیاشی نمایاں کر سکتی ہے۔
इटली के अंदर इस बात के अंदर कोई हरज नहीं कि वहां कोई औरत जो इलेक्शन में खड़ी है मुकम्मल अपना बदन बराहना करके लोगों से वोट मांग सकती है, और मांगी है। और इसी तरह मसोलिनी की पोती असेंबली के अंदर जो पूरे विधानसभा की असेंबली होती है, असेंबली में अपने कपड़े निकालकर वोट का मुतालबा करती है। फ्रांस के अंदर सदर की बेटी बगैर शादी के बच्चा पैदा करती है, फ्रांस उस पर कोई उंगली नहीं उठाती। और इसी तरह ब्रिटानिया में एक साथ कॉलेज पढ़ने वाले लड़के, गैर मुहरिम लड़के लड़कियां एक साथ बैठ भी सकते हैं, एक कमरे में रह भी सकते हैं, और एक हमाम में नहा भी सकते हैं, अय्याशी करके बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। और ब्रिटानिया की हुकूमत उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकती, ना उनके मां बाप उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर एक शहर है बर्लिन नाम का, 15 जुलाई को, हर साल की 15 जुलाई को तकरीबन 5 लाख नौजवान लड़के और लड़कियां एक जगह जमा होते हैं, रैली निकलती है 5 लाख लड़के लड़कियों की, उनके सर से लेकर पैर तक बदन पर एक कपड़ा नहीं होता। हर साल 15 जुलाई को जर्मनी के बर्लिन शहर में 5 लाख नौजवान लड़के और लड़कियों की बराहने जिस्म की रैली निकलती है, और यह मोहब्बत का काफिला इसका नाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसी बर्लिन में 1200 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सड़क है, 1200 किलोमीटर में वहां जिना के अड्डे बने, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां फ्री में जिना करने के लिए मिल जाती हैं। और अमेरिका में इंडियाना एक शहर है अमेरिका के अंदर, और नेकड सिटी और इंडियाना एक सिटी है अमेरिका के अंदर। इन सिटियों के अंदर हर साल कई लड़के और लड़कियां, औरतें और मर्द एक जगह जमा हो जाते हैं कई घंटों के लिए अपने जिस्म को बराहना कर कर। यह दुनिया कुर्बे कयामत का जमाना है, अय्याशी और फहाशी का जमाना है। आप थोड़े दूर चले जाइए, इसी इंडिया के शहरों की बात करता हूं, आप शहरों में चले जाइए जो इंडिया के कैपिटल सिटीज हैं, यहां के क्लबों में चले जाइए, फलां की बीवी दूसरों के साथ, उसकी बीवी तीसरे के साथ क्लबों में गले में कमर में अय्याशी करते हुए, डांस करते हुए, उनके साथ कमरों में या रात गुजारी शब्बाशी करते हुए, कोई हरज की बात नहीं। ये हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। ऐसे जमाने में हमारा क्या ईमानी किरदार बनता है, हम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, कुरान इस बारे में हमको क्या तालीम देता है। एक मोमिन अगर बागैरत रहे, गैरत उसके अंदर जिंदा रहे, वो कभी अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए, अपने घराने वालों के लिए ऐसी अय्याशी को कभी इजाजत नहीं देता। वो मरना गवारा करेगा, अपनी माँ बेटी बहन को किसी गैर के साथ देखना गवारा नहीं करेगा, और ना इस चीज की वो इजाजत देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद सूरह हदीद के 27वीं आयत में अल्लाह कहता है, वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह। इन लोगों ने रहबानियत इख्तियार कर लिया जिसकी इजाजत अल्लाह ने इनको नहीं दिया, और ये समझते हैं कि हम अपने आप को रहबानियत बनकर अल्लाह को खुश कर रहे हैं। रहबानियत इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, और रहबानियत के नाम पर अय्याशी करना, रहबानियत के नाम पर अपने आप को शादी से रोके रखना इस्लाम में जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर 3 सहाबा आकर नबी के बारे में मालूम करके कसमें खाए थे। उनमें के एक सहाबी ने कसम खाया था, मैं जिंदगी भर निकाह नहीं करूंगा। नबी ने कहा, निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, और ये याद रख ले, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, हैसियत रखकर, ताकत रखकर, जवानी रखकर, कमाने की ताकत रखकर निकाह से इनकार करेगा, फलैसा मिन्नी, कयामत के दिन मेरी उम्मत से उसे खारिज कर दिया जाए। आज भी कितने ऐसे नौजवान हैं, हमारे लायक का रिश्ता नहीं मिला, हमारे लायक का रिश्ता नहीं मिला, हमारी बच्ची नौकरी वाली, हमको नौकरी वाले चाहिए, हम बड़े मालदार हैं, हमको मालदार घराना रिश्ता चाहिए। ऐसे देखते देखते हमारे बच्चे बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, हमारे बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, अधेड़ उम्र को चले गए, आज तक उनकी शादियां नहीं किए। आपको मालूम
क्या वो आज भी कुंवारे हैं या कुंवारों की शक्ल में कितनी अय्याशियां कर चुके, कितने जिना कर चुके। जो वालिदैन जानबूझकर अपने बच्चों के वक्त पर निकाह नहीं करेंगे, अगर वो औलाद जिना करती है, उसके जिना का एक हिस्सा अल्लाह वालिदैन को देगा, बाद में औलाद को देगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों की सही उम्र में निकाह कर दिया करें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी के जमाने में, नबी जब नबी बनकर आए, उससे पहले अरब के जमाने में सिर्फ गैरत की वजह से लोग लड़की पैदा होने पर ले जाकर खड्डा खोदकर जिंदा गाड़ देते थे। वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरी बेटी किसी के जिना की सबब बने, मेरी बेटी किसी की लौंडी बने। अगर मेरे पास कमाने हैसियत नहीं, मेरी बेटी को किसी ने खरीद लिया, मेरी बहन को किसी ने खरीद लिया, फलां की बहन है जो लौंडी बनी है, फलां की बीवी है जो लौंडी बनी है, फलां की बेटी है जो फलां की लौंडी बनी है, ये गैरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए औरत को वो जिंदा नहीं रखते थे, ले जाकर खड्डा खोदकर गाड़ देते थे, गैरत की वजह से, अपने अंदर की गैरत की वजह से। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल के जमाने में जब हम देखते हैं कि सिर्फ शौहर ने बीवी से बात किया, बीवी ने शौहर को उल्टा जवाब दे दिया, गैरत में आकर मर्द ने औरत को कत्ल कर दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बीवी मुझे पलटा कर जवाब दे, और देखता है कि मैंने मना किया था मेरी बीवी को बाहर जाकर काम करने से, लेकिन मेरी बीवी जाकर काम कर रही है, गैरत में इसने तलाक दे दिया। कहीं हम देखते हैं एक लड़का लड़की को रिश्ता मांगता है, लड़की ने उसका रिश्ता मना कर दिया, वो उससे मोहब्बत करता है, गैरत में आकर उस लड़की का उसने कत्ल कर दिया। ये जुर्म है, ये गलत है। मैं गैरत की बातें बता रहा हूं जो लोगों के अंदर पनपी हुई है, जो गलत इस्तेमाल में अपने गैरत को इस्तेमाल करते हुए कत्ल गारतगिरी पर उतर आए। और कई जगह हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की शादी के तौर पर मंगनी हो गई थी, अब दोनों के अंदर बातचीत शुरू हो गई, बातचीत के बहाने से मुलाकातें शुरू हो गई, लड़की शादी से पहले हामिला बन गई। क्यों? किसने यह गवारा किया? माँ बाप ने इजाजत दिया, चलो मंगनी हो चुकी है, मंगेतर बन चुका है, बात करने की इजाजत दें। कौन सी शरीयत में लिखकर है मंगनी करना? किसी शरीयत में मंगनी की इजाजत नहीं है, मंगनी का तस्वर भी नहीं है इस्लाम के अंदर, आपने बना लिया। ये ईसाइयों की देन है। ईसाइयों में एंगेजमेंट नाम की वो लोग रिंग पिनाकर बात तय कर लेते हैं। उनका देखा देखी हमारे मुसलमानों में आ गया कि लड़के को सिल्वर रिंग पिनाएंगे, लड़की को गोल्ड रिंग पिनाएंगे, मंगनी के नाम पर शादी हाल बुक करेंगे, 10 बकरे काटेंगे। इतनी फजूल खर्चियां कि जिसमें 4 यतीम लड़कियों के आराम से निकाह हो सकता है। अल्लाह अकबर। अब मंगनी तो हो गई, चलो भाई किसी तरह मंगनी कर लिए, आपने दौलत को फजूल खर्ची किया तो अल्लाह को जवाब देने वाले आप। यहां तक तो सही था, लेकिन इसके बाद मां बाप की गैरत कहां मर गई थी जो अपनी बेटी को अपने मंगेतर से बात करने की इजाजत दे दिए। हमने अपनी आंखों से देखा कई शहरों में कि बात करते करते जिस वक्त बाप घर पर नहीं है, मां कामकाज में मशगूल है, पड़ोसियों के घर चले गई, लड़की अपने मंगेतर को घर को बुला रही है, मुलाकातें हो गई, शादी से पहले लड़की हामिला हो गई। अब सवाल यह है क्या उसके साथ निकाह करें या ना करें? अब ये बच्चा रखे या ना रखे? जिना का बच्चा, हराम का बच्चा, अब इसे रखे या अबाशन करके निकाल दे? अस्तगफिरुल्लाह। कई उलमा ने जवाब दिया ये बच्चा उसका बाप नहीं बन सकता, ये बच्चा उसका वारिस नहीं बन सकता, ये वलदुज़ जिना है। ये सुनने के बाद जाकर उस हमल को गिरा दिए, बच्चे को मार दिए। ये कहां से आई? आपकी गैरत मर गई थी ना, जो आपने अपनी बच्ची को मंगेतर से बात करने की इजाजत दे दी। कई जगह कहते हैं क्या आंटी मुझे आपकी बेटी भेजिए, हम आइसक्रीम खिला के लाएंगे, जूस पिला के लाएंगे, कुछ घुमा के लाएंगे। अरे ये तो शादी करने वाला मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला दामाद है, भेज दिए। अस्तगफिरुल्लाह। नतीजे क्या निकले? इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। मंगनी हो गई तो वो आपका मुहरिम नहीं बना, वो अभी भी गैर मुहरिम है, उसके साथ बात करना भी हराम है, मुलाकात करना भी हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सुनन अद-दारमी की हदीस है, 2 नंबर की हदीस, एक सहाबी आते हैं, हजरत सुबरा बिन माबद बयान करते हैं, रिवायत के रावी, एक आदमी नबी के जमाने में आए और वह कहने लगे अल्लाह के नबी,
हम जमाने जाहिलियत में बुतों की इबादत करते थे। हमारे अंदर दो खराबियां पाई जाती थी। हम बुतों की इबादत करते थे और बच्चियों को जिंदा गाड़ा करते थे। एक मेरी बच्ची थी जो बड़ी प्यारी थी और इतनी बड़ी हो गई थी, जब भी मैं बुलाता था दौड़े चले आती थी अब्बा जान बोलकर। लेकिन मुझे इस बात की गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं बच्ची का बाप बनूं। मुझे बर्दाश्त नहीं था। जमाने में होने वाली अय्याशियों को अपनी आंखों से देखता था। मैं अपनी बच्ची को जिंदा रखना गवारा नहीं समझा। एक दिन मैं एक रास्ते में लेकर निकला, वहां बड़ा कुआं था, बड़ा बौड़ी थी। उस बौड़ी के किनारे ले गया, मेरी बच्ची को धक्का देकर मैंने उसमें गिरा दिया। जब मैं वापस लौट रहा था, मेरी बच्ची डूब डूब कर उस कुएं में जो मर रही थी, उसके आखिरी अल्फाज थे, या अबता, या अबता, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ये सुनकर रो पड़े, हत्ता कफ़्फ़ा दमअहु ऐनैहि, यहां तक कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फक़ाल लहु रजुलुन मिन जुलसाइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के महफिल में बैठे हुए एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अहज़नत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस आदमी ने आपको गमगीन कर दिया। अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसा वाकया सुना है कि मेरे नबी को तुमने रुला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुफ़्फ़न, रुक जाओ, फ़इन्नहु यसअलु अम्मा अहम्महु, इसे वो बात कहने दो जो इसके दिल में खटक रही है। अल्लाह के नबी, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, मेरी बच्ची अब्बा जान कहते कहते उस कुएं में मर गई, मैंने उसे जान से मार दिया, क्या मेरा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि हाँ। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आप उस सहाबी को बोले, और एक बार अपना किस्सा सुनाओ, और एक बार अपना किस्सा सुनाओ, और एक बार अपना किस्सा सुनाओ। बार बार नबी अलैहिस्सलाम उनसे किस्सा सुनते गए, रोते गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सुनो, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ कर देता है, हिजरत करने के बाद पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और हज मबरूर करने के बाद अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देता है। और ये सुन ले, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तेरे पिछले गुनाह तो माफ कर दिया, नए से जिंदगी का आगाज कर, जिंदगी में दोबारा ऐसे गलती मत कर। जो लोग आज भी अपने बच्चियों का अबाशन कराते हैं ये मालूम करके कि मेरे बीवी के पेट में बेटी पल रही है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी के चक्कर में बच्ची को अबाशन कराने वाले ये जान लें, सूरह तकवीर, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरह तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत, इसे सूरह तकवीर कहते हैं। इस सूरत की 8 और 9 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन खुतिलत, जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से अल्लाह पूछेगा किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे मारा, अल्लाह ताला से वो बच्ची एक ही जवाब देगी, मेरा जुर्म इतना था कि मैं बच्ची बनकर पैदा हो रही थी। अल्लाह उस बच्ची को जन्नत देगा, लेकिन उसे मारने वाले, उसे जिंदा गाड़ने वाले, उसका आबाशन कराने वाले जालिमों को, खातिलों को अल्लाह जहन्नम रसीद करेगा। तौबा कीजिए, अगर आपने ये जुर्म किया है तो तौबा कीजिए, और जिंदगी में कभी लड़की की वजह से कभी अपनी बीवी के हमल को मत मारिए, क्योंकि अल्लाह कहता है, ऐ इंसानों, तुमको खिलाने वाला मैं हूं, तुम्हारी औलादों को खिलाने वाला मैं हूं, औलाद को रोजी रोटी के डर से कत्ल मत कीजिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान सूरह नहल की 50 पर 8, 50 पर 9 नंबर आयत में कहता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब इन जमाने जाहिलियत के लोगों को पता चलता कि मैं बच्ची का बाप हूं, मारे शर्मिंदगी के उनका चेहरा जल कर क्या है, खाकिस्तर होकर नीचे शर्मिंदगी से उनके चेहरे हो जाते। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रुसवाई का आर समझते हैं, जबकि नबी ने इस्लाम आने के बाद क्या फरमाया, मन आला जारियतैन औ उख्तैन यौमुल क़ियामा, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुग जा यौमुल क़ियामा अना व हुवा ज़म्म असाबिअहु कहातैन, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कहातैन फिल जन्ना, जन्नत में मैं और 2 बेटियों का बाप ऐसे रहेंगे, मैं 2 बहनों का भाई ऐसे रहेंगे, बशर्ते है कि वह तौहीद परस्त रहे।
बच्चियों की परवरिश करना, बच्चियों को निकाह करके भेजना, उनकी किफालत संभालना, उनका नानो नफका बर्दाश्त करना, उनको खिला पिलाकर उनके पर्दे की हिफाजत करके उनको तालीम देकर निकाह करना जन्नत में जाने का सबब और जरिया इस्लाम बताया। आज भी कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो बच्चियों को बर्दाश्त नहीं करते, सिर्फ बेटे होने पर खुशियां महसूस करते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज के समाज में, आज के माहौल में हमारे अंदर गैरत का फुकदान होते जा रहा है, गैरत मरते जा रही है। उसकी जिंदा मिसाल कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। क्या भाई, हमारे अब्बा बोल रहा पूरे भाया मिलकर रहना गते, पूरे भाया 21 घर में रहना गते। अब एक घर में भावजों का देवरों के साथ पर्दा नहीं, भावजों का जेठों के साथ पर्दा नहीं, जेठ भावजों के साथ क्या है मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ना भावज अपने जेठ के साथ कोई किसी का कोई पर्दा नहीं। क्या भाई, जॉइंट फैमिली। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप मिलजुल कर रहो, लेकिन मियां बीवी अलग कमरा बनाकर रहो, अलग घर बनाकर रहो। एक घर में रहने की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान, आज के जमाने में कितने ऐसे केसेस नहीं होना आपको, कितने ऐसे रिश्ते नहीं, कितने ऐसे नाजायज संबंध नहीं। मेरे भाइयों, जब किसी भूखे शेर के सामने गोश्त का टिक्का रखकर आप ये उम्मीद रखोगे कि शेर गोश्त का टिक्का नहीं खाएगा, नामुमकिन है। वो फितने में ना मुब्तला हो नामुमकिन है, इल्ला ये कि कौन अल्लाह का बंदा 100 में 1 या 10 बचकर रहने वाले। लेकिन नबी ने मना फरमाया तो इसमें फितना है, इसमें गुनाह है, तो हमको दूर रहना है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हजरत उक़बा बिन आमिर बयान फरमाते हैं, आपने उनसे कहा इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा। अय उक़बा बिन आमिर, ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 112। अय उक़बा बिन आमिर, औरतों के पास जाने से बचो, जहां औरतें रहती हैं वहां दाखिल होने से अपने आप को बचाओ। फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसारी, एक अंसारी सहाबा में से एक सहाबी उठकर पूछते हैं, या रसूलल्लाह अफ़रअयतल हम्वा, आप देवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने बयान फरमाया अल हम्वु अल मौत, देवर मौत के मानिंद है, देवर से भावच का और ज्यादा पर्दा है। हमारे यहां कहां है? क्या मौलवी साहब तुम्हें ऐसे बातें कर रहे ना, घरान तोड़ने के बातें कर रहे ना, ये घर तोड़ने के नहीं, ईमान की हिफाजत के बातें हैं। ये कौन कहता है भाई भाई बिछड़ कर रहे, सारे मिलकर रहे, लेकिन एक घर में रहने की इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं, अगर बाजार में तुम किसी हसीन औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, फौरन घर आओ, अपनी बीवी से मुलाकात करके गुस्ल करके अपने दिल का सुकून हासिल करो। मिसाल के तौर पर आप तने तनहा हैं, आपकी बीवी के साथ आप अलग घर में हैं, जब चाहे दिन में रात में आप अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, सारे लोगों के बीच में से आप अपनी बीवी को लेकर जाएंगे, सबको पता चलेगा, आपके लिए भी शर्म की बाइस, उनके लिए भी शर्म की बाइस, ये नामुमकिन है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप अलग रहिए, लेकिन भाई भाई रिश्ते में बंधे रहिए, भाई भाई बिछड़ने की जरूरत नहीं। आपकी बीवी का आप उसके जेठ के साथ पर्दा है, और आपके भाई की बीवी का आपके साथ पर्दा है। जब अल्लाह के नबी ने मौत कहा तो ये फितनों की जड़ है, फितनों की जड़ है। क्या भाई, साली आधी घरवाली हमें बना लिया सो, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। साली से पर्दा है, साली से पर्दा है। आपकी बीवी जिंदा है, आपकी साली से आपका पर्दा है, क्योंकि आपकी बीवी आपके ऊपर हराम है। आपकी बीवी मर गई, आपकी बीवी को आपने तलाक दे दिया, उसके बाद आप अपनी साली से निकाह कर सकते हैं। बीवी जब तक जिंदा है, आपकी साली आपके लिए मुहरिम है, आप उसे निकाह नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आपके लिए गैर मुहरिम है, आप उससे पर्दा करना जरूरी है। ए साली आधी घरवाली, मजाक करो, हंसी मजाक करो, साली को गाड़ी में बिठा ले, शॉपिंग कराने बुला ले, जाओ। कोई किसके साथ? भौली के साथ कहते, जा बा, घर वाले भी भेज रहे, जा मां, कौन भी दूसरे ने लेते रहे, भाई जान ले, जा। अस्तगफिरुल्लाह। आज जाति सब मुंह काला कर, ये गैरत की बातें हैं। इस्लाम जिस बात से मना कर रहा वही बातें मैं पेश कर रहा हूं। आपको अच्छी लग रही, कड़वी लग रही, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। जो इस्लाम की तालीम है उस पर अमल करना हम मोमिनों को जरूरी है, मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। और इसी तरह एक
भाईजान एक भौली अपनी साली को लेकर बाजार में शॉपिंग कराने जा रहा, फिल्मा दिखाने जा रहा और घंटों घंटों मजाक कर रहा और उसके साथ बेपर्दगी इख्तियार कर रहा और कई देर तक उसके साथ बातें कर रहा तन्हाई में, ये तमाम नाजायज चीजें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई बहन भी नहीं हो सकता, नबी से बढ़कर कोई किसी का भाईजान नहीं हो सकता। नबी भी भाईजान थे, नबी की भी साली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सही मुस्लिम की हदीस 1440 पर 9 नंबर की हदीस, उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन, हम सब की मां, अबू सुफियान की बेटी, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मे हबीबा, वो कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन के बारे में दिलचस्पी रखती क्या? तो पूछे, कौन पूछे? बीवी अपने शोहर को पूछ रही है, मेरी बहन अबू सुफियान की बेटी, मेरी बहन तुम्हारी साली के बारे में तुम्हें दिलचस्पी रखती क्या? क्या मतलब अय उम्मे हबीबा जो तुम सवाल कर रही हो, क्या मतलब? अरे अल्लाह के नबी, क्या मेरी बहन से आप निकाह करना चाहती क्या? क्यों, तुम इस बात पर राजी हो क्या? क्या तुम्हारी बहन से मेरे साथ निकाह कराना तुम इस बात को पसंद करोगी? कि हाँ पसंद करूंगी। अगर आप निकाह करने के लिए राजी हैं तो मैं दूसरी औरत को अपनी सौखन बनाने के बजाय मेरी सगी बहन को मैं अपनी सौखन बनाना पसंद करूंगी। नबी ने कहा, साली के साथ निकाह करना हराम है, मुझे तुम्हारी बहन से निकाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं और अल्लाह ने इससे मना किया है, साली मुझ पर हराम है। साली का रिश्ता खुद उम्मे हबीबा ने पेश किया, लेकिन नबी ने मना किया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा नबी के सामने आई, नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, नबी ने अपने चेहरे को मोल लिया, नबी ने कहा, अय अस्मा, तुम बालिग हो चुकी हो और तुम्हारे हाथ का कपड़ा पतला है, तुम्हारे आस्तीन के अंदर से तुम्हारा हाथ नजर आ रहा है। अय अस्मा, जब लड़की बालिग हो जाती है तो उसे ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, उसका बदन नजर नहीं आना चाहिए। नबी ने कहा, आइंदा से मेरे सामने ऐसे कपड़े पहन के ना आना। नबी ने अपने चेहरे को मोड़ लिया। अस्मा को मालूम नहीं था इस मसले में, वो कहती है, मेरी जिंदगी में उसके बाद मैंने वैसा कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया। साली से पर्दा, नबी से बढ़कर कोई बहन भी नहीं हो सकता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीमात, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहन के होते हुए दूसरी बहन के साथ निकाह इंतकाल के बाद नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी रुखैया रज़ियल्लाहु अन्हा से इनका निकाह कराया। जब रुखैया का इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान गनी को अपनी दूसरी बेटी नबी अलैहिस्सलाम उम्मे कुलसूम से आपने निकाह कराया, इंतकाल के बाद निकाह कराया, इसीलिए उनका लक़ब ज़िन्नूरैन पड़ गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो हर हमेशा बागैरत बना रहे, अपने अंदर की गैरत को जगाए रखे। हजरत अस्मा कहती हैं, जब जुबैर बिन अवाम ने मुझसे शादी की तो मैं बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। नबी अलैहिस्सलाम एक जमीन दिए थे जो मेरे मकान से 2 मील के फासले पर दूर थी। उस जमीन से मैं खजूर की गुठलियां चुनने के लिए जाती थी। एक दिन चुनकर अपने सर पर गुठलियां, खजूर की गुठलियां लेकर आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम आते आते मुझे देखे, काफी धूप में से मेरी साली चलते आ रही है और आपने एक ऊंट को नीचे बिठा दिया। कहा, अस्मा, तुम इस ऊंट पर सवार होकर घर जाना चाहो जाओ। मुझे नबी अलैहिस्सलाम के साथ दीगर जो सहाबा थे, दीगर मर्दबाने थे, उनको देखकर मेरे अंदर शर्म आ गई। मेरे शौहर जुबैर बिन अवाम की गैरत याद आ गई। मैं बैठना गवारा नहीं समझी, सर नीचे किया और पैदल चली आ गई। मैंने घर आकर जिक्र किया मेरे शौहर से, अल्लाह के नबी रास्ते में मिले थे, मेरा चलना, धूप में आना देखकर एक ऊंट रास्ते में बिठाए, बोले अस्मा, इस पर सवार होकर जाना चाहो जाओ। मैंने सवार नहीं किया, आपकी गैरत याद आ गई। बोले, आप सवारी कर लेती, मेरे लिए कोई दुश्वारी की बात नहीं थी, लेकिन तुमको इजाजत किसने दिया? तुम गई कैसा बाहर? तुम गई कैसा? किसने इजाजत दिया? आइंदा से आपको काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। गैरतमंद शौहर अपनी बीवी को मना कर रहा है। ये गैरत होना चाहिए हर मर्द के अंदर।
और हमारी औरतों को चाहिए कि अपने शोहर की इजाजत के बिना कहीं बाहर ना जाए, अपने शोहर की मर्जी के बिना किसी गैर मर्द को घर में आने की इजाजत ना दे। और होता यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आजकल जो भी नौकरी के लिए अपने ऑफिस में, अपने दुकानों में काम के लिए रखते हैं, नौजवान लड़कों को या नौजवान लड़कियों को रखते हैं। कितने ऐसे ओनर नहीं हैं जो सिर्फ काम का फायदा उठाने के लिए अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम अपना बदन में जो बेचोगी तो ये नौकरी तुम कर सकोगी, अगर मुझे बदन नहीं बेचोगी तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। कितनी ऐसी लड़कियां ने जो अपने ऑफिस के ओनर या बॉस के साथ अपनी जिनसी इस्तेहसान करती है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि औरत कमाने के लिए बाहर जाए, गैर मुहरिमों के सामने बेपर्दा होकर कमाए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारी बच्ची को बड़ी डिग्रियां पढ़ा रही, हमें क्या वास्ते पढ़ा रही भाई? जॉब कराने के वास्ते पढ़ा रही। कहीं का जॉब करती है? नहीं, घर बैठे जॉब करती है। नहीं, ऑफिस में जाकर जॉब करती, चार गैर मर्दों के बीच में बैठ कर जॉब करती। बुर्खा पहन को जॉब नहीं कर सकती, बुर्खा निकाल को जॉब करना पड़ता। अल्लाह अकबर। बुर्खा निकालने के बाद पता नहीं बदन के और कौन कौन से कपड़े उतर जाए। इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता कि गैर मुहरिमों के साथ तुम काम करो। इस्लाम ने आपको घर संभालने की इजाजत दिया है, घर संभालने का हुक्म दिया है। मर्दों को खव्वाम बनाया है कमाने के लिए, बाहर कमा कर लाने के लिए मर्दों को अल्लाह ने हुक्म। हाँ, औरत भी कमा सकती है लेकिन पर्दे की हिफाजत में, ईमान की हिफाजत में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह आज के जमाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नौकर मिलना मुश्किल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अजीज मिस्र घर लेकर आए गुलाम की शक्ल में, जब वो जवान होने लगे तो मलिके मिस्र उन पर वरगलाने लगी, बुरे इरादे करने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने फितने में मुब्तला करने की कोशिश करने लगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह ने मुझे अच्छी कैफियत में रखा है, मैं अपने मालिक को धोखा देना पसंद नहीं करता। अरे मलिके मिस्र, ये चीज से बाज आ जा, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक गए, भागने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़कर खमीस को खींचा, पीछे की खमीस यूसुफ अलैहिस्सलाम की फट गई। जब मलिक अजीज मिस्र अंदर आ गया, देखा मेरी बीवी है, यूसुफ है, क्या माजरा है? बीवी उल्टा हो गई कि तुम्हारा गुलाम मेरी इज्जत लूटने के लिए अंदर आया था, तुम्हारा गुलाम मेरी इज्जत पर हमला करने आया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, क्या माजरा है? नहीं मेरे मालिक, आपकी बीवी ने मुझे इस काम के लिए वरगलाया था, मैंने कभी इस बुराई के ऊपर आमदा नहीं हुआ। दीगर लोगों से पूछा बादशाह, तो दीगर लोग कहते हैं अगर आपकी बीवी के सामने सीने के पास के कपड़े फटे हैं तो समझ लेना आपकी बीवी की गलती है, अगर यूसुफ की गलती है। अगर यूसुफ के पीठ के पीछे के कपड़े फटे हैं तो समझ लेना आपकी बीवी की गलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे के कपड़े फटे हुए, अजीज मिस्र समझ गया कि मेरी बीवी की गलती है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कैद खाने डाल दो, यह बात गवारा है, मैं ऐसे गुनाह में पड़ना गवारा नहीं करता। यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भेज दिया गया। वो अपनी इज्जत की हिफाजत किए, अपने मालिक के साथ धोखा नहीं किए। आज कितने काम करने वाले नौकर, घरों में कार चलाने वाले ड्राइवर, चाहे वो इंडिया हो या गैर ममालिक में हो, अपने मालिक की बीवियों के साथ, अपने मालिक की बेटियों के साथ सिर्फ घर में नौकरी करने के बहाने से मालिक की गैर मौजूदगी में अय्याशी का अड्डा बनाए बैठे हैं। वो ये समझते हैं कि मेरे मालिक को पता नहीं चल रहा, मेरे मालिक को इस बात का इल्म नहीं है। अरे तेरे मालिक को पता हो या ना हो, अल्लाह ताला तो सब देख रहा है, अल्लाह के इल्म में सब है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी जवान बेटी और बीवियों के पास नौजवान लड़कों को नौकरी पर ना रखें। अगर हम जवान हैं, हमारे काम करने वाले कारीगर जवान हैं, तो वहां किसी हसीन नौजवान लड़की को, औरत को काम के लिए हरगिज ना रखें, क्योंकि आप फितने में पड़ सकते हैं, आपके कारीगर फितने में पड़ सकते हैं। इस चीज से बचा के रखें। औरत को बापर्दा होकर हर जगह घूमना चाहिए, बेपर्दा होकर औरत को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बेपर्दगी की इजाजत भी औरत को नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، رواہ الجامع الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی تنہائی مرد کے ساتھ کوئی تنہا عورت کسی بند کمرے میں جمع نہ ہو۔ اگر کسی تنہائی میں کوئی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی غیر محرم مرد بیٹھتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بند کمرے میں ہم دونوں ہی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم دونوں کے علاوہ اس جگہ تیسرا شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، تمہارے دلوں میں فتنہ زنا کے وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھ کمرہ خالی ہے، تم تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اسے ہاتھ لگا، اسے اپنی طرف مائل کر، اسے ٹچ کر، زنا کرا دیتا ہے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے۔ نبی نے کہا کسی عورت کے پاس کوئی تنہا غیر محرم مرد نہ جائے، کسی تنہا مرد کے پاس کوئی تنہا عورت ہرگز غیر محرم نہ جمع ہو۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے منع کیا، اور عورت کو بغیر محرم کے تنہا سفر کرنے سے منع کیا۔ آج کل کی عورتیں حج بک کر لے کو جاری، عمرہ بک کر لے کو جاری، کیسا ماچار؟ میری خالہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری امی کے ساتھ جا رہا ہوں، میری آنٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، ہمیں 4 بھائی کا ایک ساتھ جاری۔ تو 4 بھائی کا کیا محرم ہو گئے؟ ارے تمہارا محرم تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر۔ مرد میں سے کوئی محرم ہونا چاہیے۔ 4 عورتیں گتے ملنے جاری گتے ہو گیا گتے۔ نبی نے حج کا سفر کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اور کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے۔ یہ سننا تھا، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے بولے اللہ کے نبی میری بیوی تنہا حج کو نکل گئی اور میں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے فلاں غزوے میں فلاں جنگ میں نام لکھا دیا ہوں، میرا جنگ میں جانا آپ کے ساتھ ضروری ہے بول کر نام لکھایا ہوں، بول کر میں نہیں گیا، میری جورو کو حج کو بھیج ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے یہ سن کر کہا تم کو ہمارے ساتھ جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں، پہلے تمہاری بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو۔ صحیح مسلم شریف 1440 پر 1 نمبر کی حدیث۔ نبی نے غزوے میں آنے سے منع کر دیا، لیکن بیوی کے ساتھ حج کو جانے کا حکم آپ علیہ السلام نے دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا آج کے زمانے میں کوئی عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ اگر وہ تنہا جا کر عمرہ کر کے آتی ہے، حج کر کے آتی ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب تنہا عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا، تاکتا، اپنے زہریلے تیروں میں سے لوگ تیر اس کی طرف ڈالتے ہیں بدحواسی کی، بے پردگی سے جب تنہا عورت نکلتی ہے۔ اسی لیے کوئی عورت تنہا نہ نکلے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اور اسلام میں مسلمان عورت کا گھر سے باہر اگر نکلنا ضروری ہے تو با پردہ ہو کر وہ جائے، بے پردہ جانے کی اسے ہرگز اسلام اجازت نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قرآن مجید سورہ احزاب 50 پر 9 نمبر آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، امت کی عورتوں سے، کہ وہ اپنے سینوں پر دوپٹہ اوڑھ کے رکھے، اپنے سر پر اور سینے پر دوپٹہ اوڑھ کے رکھے، اس لیے کہ یہ عمل ان کے لیے بہتر ہے۔ بغیر دوپٹے کے وہ نہ جائے، بغیر اپنے سینہ کھلا نہ رکھے، سر پر اوڑھنی ڈالے رکھے، سینہ بند رکھے۔ اللہ کا حکم ہے سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت۔ 33 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَخَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھر میں بیٹھی رہو اے عورتوں، جاہلیت کے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ شادیاں میں دیکھو، ولیمے میں دیکھو، لپسٹکاں لگا لے کو، آئی برو کرا لے کو، دوسروں کو دکھانے کے واسطے جھلکنے والا لباس پہن کو بغیر برقعے کے غیر محرموں کے بیچ میں عورتیں پھرتے رہتے، اور مرد بانے بھی عورتیں ہے اس جگہ آج ہونا کر جاتے رہتے۔ اور
वीडियोग्राफी करने वाला होना का, तो जो औरत महफिल में सबसे खूबसूरत है, ज्यादा बनसवर को मेकअप करी, उसे एक वीडियो शूट करते रहते, ये सब नाजायज है, ये हराम है। अच्छा, तुम्हें फिल्म बना ली है शादी की, अब वो वीडियो कितने गैर महरिमा देखती, कितने जने देखती, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब नाजायज। कौन जी सिखाया जाहिल ये अमल बीवियों के साथ, औरतों के साथ? अल्लाहु अकबर। शादियों में नाच गाने, फिल्मों के गाने लगाकर नाचते हैं। कल निकाह है का तो फिल्मों के गाने लगाकर नाचती। अल्लाहु अकबर। बेगैरती का मुजरा, अय्याशी का मुजरा। अरे तुम्हारे से तो गैर मुस्लिमा बेहतर ना जी, गैर मुस्लिमा बेहतर। कम से कम उन्हें अपने घर के अंदर, अपने आंगन के अंदर नाचेंगे, महल्ले में नाचती, सारे महल्ले वालों को सुना, इस तरह का म्यूजिक बजा को सुना को नाचते। मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलने वाले, कहां मर गई तुम्हारी गैरत? फिल्मों के गाने लगा को शादियों में नाचना, कौन जी सिखाया ये? अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कुरान और हदीस के मुताबिक हिजाब किसे कहते हैं, पर्दा किसे कहते हैं? हिजाब का मतलब यह है कि औरत सर से लेकर पैर तक अपने लिबास को ढांक के रखे, सिवाय अपनी आंखों के, सिवाय अपनी आंखों के, अपने सारे बदन को ढांके। हिजाब का मतलब यह है कि कपड़े वो ऐसे ना पहने कि जिस्म से लगा हुआ हो, ढीला ढाला कपड़ा हो, टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट या लेगिंग्स पहनकर बाहर जाना ये जायज नहीं। कि उसके पैर के पिंडलियां कितने छोटे कितने मोटे बाहर से पता चल रही, उसके बॉडी के पार्ट्स, हराम है, नाजायज है ये। ऐसा चुस्त लिबास पहनना जायज नहीं है औरत के लिए। और औरत के कपड़े का लिबास का मतलब तीसरा उसूल, इतना बारीक भी ना हो कि अंदर से उसके जिस्म नजर आए, इतना बारीक भी ना हो। अल्लाह के नबी ने कहा 2 किस्म की औरतों पर जन्नत, तो क्या जन्नत की खुशबू भी हराम। उनमें से एक वो औरत जो बारीक लिबास पहनकर दूसरों को अपना जिस्म दिखाती है, अल्लाह जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया। बारीक लिबास पहनना नाजायज है। आजकल की हमारी औरतों को देखो, 2,500 रुपए करते, 5,000 रुपए का ड्रेस करते, 10,000 का ड्रेस करते, 40,000 का हैदराबाद से खरीद लेकर करते, लेकिन आस्तीन कैसा? 4 छान 300 छल्ली रहती नहीं, मच्छरदान की छल्ली रहती नहीं, वो मच्छरदान की झल्डी को कट कर को आस्तीन बनाई करना, पूरा हाथ नजर आते रहता, पूरा से आधा सीना नजर आते रहता, औरत का बगल नजर आते रहता। ये तमाम नाजायज है ये कपड़े। अल्लाहु अकबर। ये कपड़े तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएंगे, जन्नत की खुशबू भी नहीं दिलाएगी। और चौथा मेयार कि औरतों का कपड़ा मर्दों के जैसा ना हो, मर्दों का कपड़ा औरतों के जैसा ना हो। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई ऐसे मर्दों पर जो औरतों जैसा कपड़ा पहन, ऐसे औरतों पर जो मर्दों जैसा कपड़ा पहन। औरतें शर्टा पहन रही, टी शर्टा पहन रही, जींस पैंटा पहन, ये जायज? मर्द बने की जींस अलग, औरतों के जींस अलग। मसाब औरतों के जींस पहन, लेकिन नाजायज है। औरत के लिए जींस पहनकर घूमना नाजायज है, नाजायज है। टी शर्ट पहनकर घूमना नाजायज है। अल्लाहु अकबर। और छठा मेयार वो गैर मजहबी लिबास ना हो, चर्च के फादरों या साधुओं जैसा लिबास ना हो। और औरतों को चाहिए, मर्दों को चाहिए कि वो मर्दों के इख्तिलात की जगह से बचे। ऐसा मार्केट मर्दा ने औरता जिस्म को लगले लगले को घुसती, लगले लगले को आती, ऐसी जगह जाना नहीं होना तो वैसी मार्केट में जा। मर्दा ने औरतों को लगले को घुसले जा रही, औरता मर्दा ने को घुसले घुसले को जिस्म को लगले जा रही, वैसी जगह जा, वो दुकानों में जा घुसती, वैसी जगह जाना नहीं, अपनी औरतों को भेजना नहीं। इख्तिलात वाली जगह से अपने आप को बचाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी औरत को जानबूझकर इख्तिलात वाली जगह भेजेगा, 1 नंबर का दय्यूस। 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह जन्नत हराम जहन्नम वाजिब करे। 3 किस्म के लोगों, नंबर 1 हमेशा शराब पीने वाला, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, नंबर 3 दय्यूस। दय्यूस, दय्यूस बोले तो कौन बोले? अल्लाह के नबी से। नबी ने फरमाया वो इंसान जो अपनी औरत को गैर मुहरिमों से बात करने में, मुलाकात करने में, इख्तिलात की जगह भेजने में शर्म महसूस नहीं करता। गैरत मर गए, मेरी बेटी को पर भरोसा, जा बेटी फोन लेकर जा, कहां जाती जा,
ट्यूशन के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ जा रही, पार्का में जा रही, लारजा में जा, कहां कभी जाने क्या अभी से फर्क नहीं। दయ్యూस एक नंबर का, जन्नत हराम कर डाले अल्लाह से। दయ్యూस को तो बेगैरत, गैरत अपने अंदर जगाओ, गैरत अपने अंदर पैदा करो। बेगैरत मोमिन नहीं होता, एक नंबर का मुनाफिक और काफिर होता बेगैरत। और अल्लाह ताला हमने हलाल जानवर खाने का हुक्म दिया, बकरा, गाय, ऊंट और छेला, मुर्गा, मुर्गी, इन जानवरों में अल्लाह गैरत रखे। ये जानवर अपने फीमेल को दूसरा जानवर टच करे तो बकरा हुड्डी खेल को से जान से मार डालेगा, अपनी बकरी को दूसरे बकरे के साथ टच करने नहीं देगी। अपना मुर्गा मुर्गी पालते रहती गली में, तुम्हें मुर्गा मुर्गी जो पाल रही, इसकी मुर्गी को दूसरा मुर्गा ठोक मारने आया, पार्कों से हटा डालता, अपनी मुर्गी को छीने नहीं देता। वो खाने वाले में भी गैरत अल्लाह वैसा रखे। ईसाई लोग खिंजीर खाते हैं, खिंजीर के अंदर गैरत नहीं, खिंजीर खाने वाले में भी गैरत नहीं। इसीलिए हलाल जानवर खाए तो गैरत बाकी रहती, हलाल खाना छोड़े अल्लाह गैरत करने का मरने मार डालता, अंदर से गैरत मर जाए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो दुनिया की अय्याशी और बदमाशी से बचने अपने औरतों को ऐसी जगह इलाज करने ना भेजे जहां डॉक्टर है। अब वहां औरत को भेज डाले, डॉक्टर है, कहीं कंपाउंडर है, तने तनहा औरत जारी, या नहीं तो औरत के आंग में जिन्न आ गया कहते, जादू आ गया कहते, वो बाबा इलाज करने वाले कहते, हमें नहीं तो भी क्या हुआ हजरत, तुम्हें इलाज करने आ जाओ घर को। अब इलाज का तरीका क्या है? तुम्हारी बीवी को बंद कमरे में लेको बैठ को इलाज करना पड़ता। बड़ा शैतान आ गया आंग में, लग जाओ बाबा, अंदर लग जाओ, क्या कभी कर लो, टांग में से जिन काट को बाहर निकालो। जिन्ना निकालने के बहाने से, जादू का इलाज करने के बहाने से बाबाओं के हवाले कर डालती हमारे औरतें। कितने फितने नहीं देखे हमें। इलाज कराने चाहे तने तनहा डॉक्टर हो या कंपाउंडर हो या ऐसा चोर ढोंगी बाबा हो, अपनी औरतों को इनके पास मत भेजिए, ये बेगैरती की अलामत है। सामने बैठकर इलाज कराइए, पर्दे के साथ इलाज कराइए। जो बेपर्दा इलाज कर तुम बोलता पहले उसकी छुट्टी कर दो, लाता मार को भगाइए। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह मर्दों का और मजारों पर औरतों को भेजना, मजारों पर हाजिरी देना और फहश लिटरेचर पढ़ना, गंदे फोटोआं देखना, गंदे तस्वीरों के लिटरेचर पढ़ना, या इंटरनेट का नौजवानों का गलत इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें बेगैरती की, सारी चीजें बेगैरती की। जब तक नौजवान अपनी आंखों के अंदर शर्म और हया बाकी रखेंगे, अल्लाह इनके अंदर की गैरत को जिंदा रखेगा। जब नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी आंखों की शर्म को खत्म कर देंगे, अल्लाह इनके अंदर की गैरत को भी खत्म कर देगा। इसीलिए इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, गंदी फिल्में मत देखिए, गंदी तस्वीरें मत देखिए, वरना आपके अंदर की हया को अल्लाह खत्म कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको बागैरत बनाकर हमेशा गैरत के साथ रहने, अपने घर वालों की इज्जत और आबरू की हिफाजत, तादब हयात करने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी हमको हमारे परिवार के साथ जन्नतुल फिरदौस में, गैरतमंद मोमिनों के साथ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमको जगह नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।